رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی
اللہ رب العالمین کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ ہماری تمام تر ضرورتوں کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اور جملہ عبادات میں۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اوپر صرف اسی اللہ کا حق ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بدھا، سلطان مدینہ، سرور قلب و سینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور انہی کو اللہ نے ہم سب کا مقتدا، پیشوا، راہبر اعظم، مرشد اعظم، قائد اعظم اور امام اعظم بنایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اس مسجد کی انتظامیہ، اس ادارے کی انتظامیہ کا، جنہوں نے میری اور آپ کی ملاقات کروائی، اس کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مدرسہ کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے۔ جو بھی اس ادارے کا، اس مسجد کا انتظام کرنے والے ہیں اور جتنے بھی معاونین ہیں، تعاون صرف پیسوں کی صورت میں ہی نہیں ہوتا، تعاون کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اچھی سوچ رکھنا، دعا کرتے رہنا، پھر ساتھ کھڑے ہونا۔ تو جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی منتظمین ہیں، اللہ سب کے مال، جان، رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ آپ احباب کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے شر اور نقصان سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن پاک کا جو مقام آپ کے سامنے پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے دنیا دار انسان کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں اللہ نے آخرت کی طرف توجہ کرنے والا، آخرت کے لیے محنت کرنے والا، آخرت کے لیے کوشش کرنے والا، اس کا ذکر فرمایا۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ بالآخر ختم ہونے والی ہے، اس کا اختتام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سدا یہ دنیا رہے گی، اس دنیا کو ہمیشگی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کا اختتام ہے، اس کا خاتمہ ہے۔ ویسے تو ہم سب اس دنیا میں آتے ہیں، اختتام تو اللہ کو پتہ ہے کہ کب ہوگا اس دنیا کا۔ مکہ والے بھی کہتے تھے اور دیگر نبیوں کے انکار کرنے والے بھی کہتے تھے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ تمہارا کب پورا ہوگا جس وعدے کا تم ذکر کرتے ہو کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت برپا ہوگی۔
تو اللہ نے اس کا جواب یہی دلوایا، قل انما العلم عند اللہ۔ اس دنیا کا اختتام کب ہوگا، قیامت کب برپا ہوگی، اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال دنیا میں لوگ آتے ہیں، انسان آتے ہیں، دنیا وہیں پہ موجود ہے، لیکن وہ سارے انسان آنے والے اپنا اپنا وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہاں سدا نہیں رہنا، ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اگر کسی کو ہمیشگی والی زندگی ملنی ہوتی تو وہ محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ ہمیشگی والی یہ دنیا عطا فرماتا، ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا۔ لیکن جب وہ چلے گئے، جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو رہنا کسی نے بھی نہیں ہے۔ اس دنیا سے زندگی گزارنے کے بعد بالآخر اللہ کے پاس واپس جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، محشر کا میدان لگنا ہے، اور پھر وہاں پہ حساب کتاب کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں۔ ایک ٹھکانہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ کہتے ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی ویلیو اور وقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دنیا کا مقام تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب مچھر کی کیا حیثیت ہے، اور پھر مچھر کا پر اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بھی حیثیت اس کی دنیا کی، اتنا بھی مقام، اتنی بھی ویلیو اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں اتنی بھی ویلیو ہوتی نا تو اللہ کسی بھی کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی عطا نہ کرتا۔ ایک دفعہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، اچانک ایک مردہ پڑا ہوا بکری کا بچہ اس کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، تو جب آپ گزرے وہاں سے تو آپ کی نظر اس بکری کے بچے پر پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، اور اٹھا کے آپ نے فرمایا کون ہے جو اس کو 1 درہم میں مجھ سے خرید لے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ کے نبی ہم کیا کریں گے اس کو لے کے، ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک تو یہ مردہ ہے اور پھر ہے بھی اللہ اکبر عیب دار ہے، اس کے کان چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی ہم اس کو لے کے کریں گے کیا؟ ہم میں سے کوئی تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو اس کو ویسے ہی لے لے، مفت میں ہی لے لے، کوئی پیسہ خرچ نہ کرے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر سمجھو اللہ اکبر، جتنا اس بکری کے بچے کا تمہارے ہاں کوئی مقام نہیں ہے نا، کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کے ہاں دنیا حقیر ہے، اس کا کوئی مقام نہیں اللہ کے ہاں۔ یہ تو دارالامتحان ہے، یہاں پہ تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے صرف امتحان کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا اس ذات نے تخلیق کی ہے موت بھی، اور اسی ذات نے تخلیق کی ہے زندگی حیات بھی، یہ موت و حیات کا نظام اس نے بنایا ہے۔ اللہ یہ دنیا بنا کے دنیا کے اندر تو نے ہمیں بھیجا کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، میری اطاعت میری فرما برداری کرنے والا کون ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے۔ اور یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم
यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा वमन अरादल आखिरता वसआ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। अल्लाह फरमाते मन कान युरीदुल आजिलता, जिसका भी इरादा दुनिया की ज़िंदगी का है कि दुनिया की ज़िंदगी की नेमतें मुझे मिल जाएं, दुनिया का ठाठ बाट मुझे हासिल हो जाए, मेरा एक मकाम बन जाए, मेरी एक वैल्यू बन जाए, मुझे लोग देखें, मुझ पर हसरत करें, मैं ठाठ बाट वाली ज़िंदगी गुजारूं। फरमाया मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। हर एक की चाहत के मुताबिक हम दुनिया नहीं देते, हर एक को उतनी ही दुनिया अता करते हैं जितनी हम चाहते हैं, हर एक की ख्वाहिश के मुताबिक। अल्लाह अकबर। और बड़ी प्यारी बात की बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखपुरी अलैहिर्रहमान, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वो कहा करते थे दुनिया नहीं बंदी बंदे दी, ए बंदा फानी दुनिया दा, कर लोग बनाई हिरदे ने ए अड्डा फानी दुनिया दा। कल वारिस एक विरासत दे आपस विच लड़दे वेखे मैं, गल पग्गों हथी एक दूजे नू तौणों फड़दे वेखे मैं। ते लड़ाई किस चीज़ दी? ओ पत्थर तरती मेरी आटोए टिब्बे तेरे ने, एक आखे तरती मेरी दूजा आखे तरती मेरी या। तरती ने कहा ना मैं ए दिया ना ओ दिया, ए दोवें बंदे मेरे ने, ये मेरे हैं, मेरे अंदर आने वाले। फरमाया मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जो दुनिया का इरादा करता है कि मेरी दुनिया की ज़िंदगी बन जाए, मैं अच्छा मकान बना लूँ, अच्छी कोठी बना लूँ, अच्छा बैंक बैलेंस बना लूँ, मेरा रोब हो, मेरा दबदबा हो, मेरी वैल्यू हो, मेरा मकाम हो, लोग मेरी तरफ नज़रें उठा उठा के देखें, इस पर बड़ा अल्लाह का फजल है, इस पर बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये तो बड़ी ठाठ बाट वाली ज़िंदगी गुजारता है, ये तो बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह फरमाते हैं याद रखना उतनी ही दुनिया मिलेगी जितनी हम चाहेंगे, लेकिन नुकसान क्या होगा? सुम्मा जालना लहू जहन्नम, ये दुनिया के लिए मेहनत करने वाले के लिए बिलाखिर हम जहन्नम ठिकाना बना देते हैं। यस्लाहा मज़मूमम मदहूरा, जिस जहन्नम में ये जाएगा तो बड़ा ही ज़लील व रुस्वा हो के जाएगा, फिर वहाँ ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। अल्लाह अकबर। ज़िल्लत कैसी? ये दुनियादार बंदा जो सिर्फ दुनिया के लिए मेहनत करता है, जो ही उसकी आंखें बंद होती ना, बल्कि अल्लाह ने तो कुरान में ये भी फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया लौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम अल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हूनी बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुन्तुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अल्लाह फरमाते जब दुनियादार बंदा, अल्लाह का इनकार करने वाला, ना अल्लाह की परवाह, ना आखरत की परवाह, जब ना रसूलुल्लाह की परवाह, ना जन्नत जहन्नम की परवाह, बस दुनिया में मगन रहा, जब इसकी मौत का फरिश्ता, जब इसकी मौत का वक्त आता है, फरिश्ते आते हैं इसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए, तो क्या करते हैं? अल्लाह फरमाते बासितू अयदीहिम, अपने हाथों को फैलाते हैं इसकी तरफ और कहते हैं
अखरिजू अनफुसकुम, हमने तेरी जान को नहीं निकालना बल्कि अपनी जान को खुद निकाल। ये तड़पता है, परेशान होता है, जब जान नहीं निकलती तो फिर क्या होता है? फरमाया यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम, वो फरिश्ते इसके चेहरे पर मारते हैं, इसकी पीठ पर मारते हैं, पुश्त पर मारते हैं, और फिर क्या कहते हैं? ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, उस अजाब का मजा चख जो अजाब तुझे जला के राख बना देगा। ये है जिसने दुनिया के लिए मेहनत की। अल्लाह अकबर। अब आगे कब्र का मामला है, कब्र भी तंगी वाली कब्र, और उसके बाद जब इसको महशर के मैदान में उठाया जाएगा ना, महशर की सख्तियां देखेगा। क्या सख्तियां होंगी? फरमाया नाशरुहुम यौमल क़यामति अला वुजूहिहिम उमयम व बुकमा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा खबत ज़िदनाहुम सईरा। अल्लाह फरमाते नाशरुहुम यौमल क़यामति अला वुजूहिहिम, ये दुनिया के लिए मेहनत करने वाले, दुनिया के लिए सारी कोशिशें करने वाले, क़यामत के दिन हम इनको उठाएंगे तो ये अपने पाँव के बल चल के नहीं आएंगे, बल्कि फरमाया नाशुरुहुम यौमल क़यामति अला वुजूहिहिम, उल्टे होंगे, अपने चेहरे के बल चल रहे होंगे। और इससे भी बड़ी बात फरमाया उमयम व बुकमम व सुम्मा, आँखों से देख नहीं सकेंगे, कानों से सुन नहीं सकेंगे, ज़बान से बोल नहीं सकेंगे। इस तरह अल्लाह इनको ज़लील व रुस्वा करके महशर के मैदान में लाएगा। ये कौन है? दुनियादार, जिसने बस सिर्फ अपनी दुनिया की फिक्र की, और वहाँ पे फिर अल्लाह के सामने खड़ा होगा, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। अब अल्लाह पूछेंगे तो क्या बनेगा? फरमाया अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल कादिया मा अगना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िरान फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन। ये कुरान है, कुरान सूरतुल हाक़ा 29वां पारा। कुरान पढ़ा करे, तर्जमे के साथ पढ़ा करे, ताकि पता चले कि अल्लाह हमें कहता क्या है, अल्लाह हमें समझाता क्या है, अल्लाह हमें समझाना क्या चाहता है। अल्लाह अकबर। फरमाया अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, वहाँ हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। अल्लाह इसकी किताब को, इसका नामा जो आमाल होगा, जिसमें इसकी किताब, जिस किताब के अंदर इसके आमाल दर्ज होंगे, वो इसके सामने अल्लाह खोल के रख देगा। और फिर अल्लाह फरमाएगा इकरा किताब का, अपनी किताब को खुद पढ़ ले, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, मैंने तेरा हिसाब क्या लेना है, बल्कि तेरी किताब, अल्लाह अकबर, तेरा अपना वजूद ही तेरा हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। जब किताब को खोला जाएगा उस वक़्त परेशान होगा। और अल्लाह ने दूसरे मकाम पे फरमाया वुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीही यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह फरमाते किताब को खोल के इसके सामने रखा जाएगा। मुजरिम अपने आमाल को देख देख के, अपने जुर्मों को देख देख के, किताब के अंदर जो उसके आमाल, जो उसके जुर्म दर्ज होंगे, उन जुर्मों को देख देख के परेशान हो रहा होगा। और साथ कहेगा या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, ये कैसी किताब है, हाय ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जिसने ना मेरा कोई छोटा अमल छोड़ा
ना मेरा कोई बड़ा अमल छोड़ा, ना छोटा बोल छोड़ा, ना बड़ा बोल छोड़ा, हर चीज़ को अपने अंदर महफूज कर लिया। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह कहते हैं ये इसी के अमल होंगे। ला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर भी ज़र्रा बराबर जुल्म और ज़्यादती नहीं करेगा। वहाँ जुल्म नहीं होगा, वहाँ ज़्यादती नहीं होगी, ये इसी के अमाल होंगे। जो दुनिया में हम परवाह नहीं ना करते, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बाज़ दफ़ा कहते यार ये तो एक मामूली सी बात थी जो मैंने की है। आपने फरमाया बाज़ दफ़ा इंसान जो है ना वो ना चाहते हुए ऐसे ही हंसी मजाक में भी ऐसी कुफरिया बात करता है कि वो जहन्नम की गहराई में चला जाता है, जहन्नम की तह में चला जाता है। इसलिए ज़बान को खोलें, पहले अल्फाज को तोलें, फिर बोलें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आमाल करते हुए भी ये जहन में रखना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, क्योंकि एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। इंसान की ज़बान से जो भी बोल निकलता है, जो भी ये लफ्ज़ बोलता है, मेरे फरिश्ते उसको फ़ौरन तहरीर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और दूसरे मकाम पे फरमाया इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। याद रखो लोगों, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब के दो निगहबान मुकर्रर हैं, दो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हैं, किरामन जो बड़े ही इज्जत वाले हैं, कातिबीन दोनों ही लिखने वाले हैं, यालमूना मा तफ़अलून तुम जो करते हो तुम्हारे एक एक अमल से वो बाखबर है, वाकिफ है, एक एक अमल से। तो जब ये किताब खोली जाएगी फिर इसको इसका नामा अमाल पकड़ाया जाएगा कि ये है तेरा नामा अमाल। अल्लाह अकबर, बाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा तो फिर क्या कहेगा? फरमाया मामन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया, हाय अफसोस मेरी किताब ना मुझे पकड़ाई जाती, वलम अदरी मा हिसाबिया, हाय काश मेरा हिसाब ना होता, या लैतहा कानतिल काजिया, काश मौत या के मेरा काम तमाम कर दे, मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया में मैं बड़ा जागीरदार था, मैं बड़ा वडेरा था, मैं बड़ा चौधरी था, मेरे पास बड़ा माल था, लेकिन आज तो मेरा माल भी मेरे काम ना आया। हलाका अन्नी सुल्तानिया, लोगों पर मेरा बड़ा रोब था, बड़ा दबदबा था, वो दबदबा भी मेरे काम ना आया। एक तरफ खड़ा ये अफसोस कर रहा होगा और दूसरी तरफ से अल्लाह फरमाएंगे खुजू हो, इसको पकड़ लो, फगुल्लू हो, इसको तौक पहनाओ, सुम्मल जहीम सल्लू हो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, और इसको अच्छी तरह जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की आग में फेंक दो। ये है वो बंदा जिसने अपनी दुनिया बनाई, बस सिर्फ दुनिया की फिक्र की। और फरिश्ते जब पकड़ेंगे ना तो कैसे लेके जाएंगे? दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया यौमा युदऊना इला नारे जहन्नम दआ हाज़िहिन नारुल्लती कुनतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, फरिश्ते इसको धक्के मारेंगे, जहन्नम की आग की तरफ धक्के मारेंगे, धक्के मार मार के जंजीरों में जकड़ा हुआ होगा पूरा वजूद, और इसको धक्के मार मार के जहन्नम की आग की तरफ ले जाएंगे। जाते जाते गिर जाएगा, फरिश्ते फिर उठाएंगे, वो दारोगे फिर उठाएंगे, वो अल्लाह के फरिश्ते इसको फिर उठाएंगे और फिर धक्का मारेंगे, चल जहन्नम की आग की तरफ। जब जहन्नम के करीब पहुंचेगा फरमाया सीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा क़ाला लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबी अलल काफ़िरीन। अल्लाह फरमाते फुतिहत अबवाबुहा, जहन्नम के दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। क़ाला लहुम खज़नतुहा, जन्नत के दरबान, जन्नत के जहन्नम के अल्लाहु अकबर चौकीदार, पहरेदार, जहन्नम के दारोगे इसको कहेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, तुम्हें तुम्हारे रब का पैगाम पढ़ पढ़ के सुनाने वाला कोई नहीं आया था?
अल्लाह अकबर। कोई तुम्हें रब की आयत सुनाने वाला। आज तो हमारा भी मामला यही बन गया ना, खुतबा जुमा हो या दरस हो या तकरीर हो, बस बातों से ही और फिर हंसी मजाक और फिर ये सारे मामलात। कुरान बहुत कम पढ़ के सुनाया जाता है। काश पहला दौर वापस आ जाए कि हमारे खुतबात, हमारे दुरूस, हमारी तकारीर वो कुरान से मुज़य्यन हो, तो ये फरिश्ते कहेंगे, ये दारोगे कहेंगे। तो आगे से जवाब क्या आएगा? जब ये जहन्नम में जाएगा ना, उस वक्त कहेगा लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। काश मैं अपनी अकल से काम लेता, अल्लाह की बातों को सुन लेता। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, और आज मैं जहन्नम के अंदर ना आता। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम खालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नारु वहुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुनतुम बिहा तुकज़्ज़िबून क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिमीन रब्बना अख़रिजना मिनहा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अल्लाह फरमाते मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसका नामाया, जिसके आमाल वाला पलड़ा हल्का हो गया, ये तो मारा गया। उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया। अब ये जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह जहन्नुम के अंदर क्या बनेगा इनके साथ? फरमाया तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून, जहन्नुम इनके चेहरों को जला के राख बना देगी। बद शक्ल होंगे, जैसे कोई डरौनी शक्ल वाला हो ना, उसके दांत बाहर की तरफ हों और होंठ उसका नीचे की तरफ हो, नीचे वाला ऊपर वाला होंठ ऊपर, इस तरह डरौनी शक्लें बनी होंगी। अब अल्लाह कहेगा क्यों? तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई वाज करके सुनाने वाला नहीं आया था, कोई नसीहतें, कोई मेरा पैगाम सुनाने वाला नहीं आया था। तो क्या कहेंगे? रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना, हाँ हाँ अल्लाह आया था लेकिन हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गलबा पा गई। कुन्ना कौमन ज़ालिन, हम गुमराह ही रहे। हम तो यही कहते रहे बस ये मौलवियों की बातें हैं, हम तो यही कहते रहे बस ये अल्लाहु अकबर इन्हीं की बातें हैं, ये तो किस्से कहानियाँ हैं। हम दुनिया में अपनी अल्लाहु अकबर अपनी ज़िंदगी में मगन रहे कि दुनिया बना लें, दुनिया बना लें। रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना कौमन ज़ालिन। अब क्या कहेंगे? रब्बना अखरिजना मिनहा, अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, सिर्फ एक दफ़ा वापस भेज दे। अल्लाह कहेंगे करोगे क्या? कहेंगे नामल सालिहन, अल्लाह नेक अमल करके आएंगे, दुनिया में अपनी आखरत की फ़िक्र करेंगे, अपनी आखरत की तरफ तवज्जो करेंगे, अपनी आखरत को बनाने के लिए तगोदो करेंगे। लेकिन आगे से जवाब क्या आएगा? वो अल्लाह जो शफ़क़त वाला है, वो अल्लाह जो प्यार करने वाला है, जो अल्लाह हमें बार बार कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। जितने पाप तुमने कर लिए कोई मसला नहीं, आओ मेरे दर पे आके तौबा करो, मुझसे मुआफ़िया मांगो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ़ कर दूँगा। वो अल्लाह क्या जवाब देगा? इख्साहू फ़ीहा वला तुकल्लिमून, ओ बदबख्तो इस जहन्नम की आग में पड़े रहो और मुझसे कलाम भी ना करो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। जो अल्लाह दुनिया में कहता है ना कोई मसला नहीं, ओ तू 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, तौबा कर, मुआफ़ी मांग, आ मेरे दर पे आके झुक, एक दफ़ा तू मुआफ़ी मांगेगा मैं तेरे सारे गुनाह मुआफ़ कर दूंगा। वो अल्लाह कहेगा इख्साऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। अब क्या बनेगा? फरमाया लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फ़ौक़िहिम गवाश, ऊपर वाला लिहाफ वो भी जहन्नम की आग का, नीचे वाला बिछौना वो भी जहन्नम की आग का, कपड़े तैयार होंगे। फरमाया कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, इन जहन्नमियों के कपड़े तैयार होंगे तो जहन्नम की आग के साथ। और इसी तरह फरमाया इन्ना शजरत अज़्ज़क़ूम,
तामुल आसीम कल मुहली यगली फिल बुतून कगलियल हमीम खुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम। अल्लाह फरमाते थोर का दरख्त ज़क़ूम का दरख्त, उसका खाना इनको पेश किया जाएगा। और एक मकाम पे अल्लाह ने फरमाया अपने ही जिस्मों से निकलने वाला अल्लाह अकबर गंद, पीप वगैरह, खून वगैरह वो खाने के लिए अता की जाएगी। और पीने के लिए पानी मांगेंगे तो फरमाया यस्तगीसु युगासु बिमाइन कल मुहली यशविल वजूह। जब पानी करेंगे अल्लाह कहेगा इनको पानी दे दो, वो सख्त गर्म खोलता हुआ पानी होगा, प्याला मुंह के करीब लेके जाएगा जहन्नमी, तो चेहरे की सारी चमड़ी पिघल कर उस प्याले में गिर जाएगी और कहा जाएगा कि ये प्याला तुझे पीना ही पड़ेगा। अब कहेगा या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ए मालिक फरिश्ते अल्लाह अकबर ऐ दरोगे अपने रब से सिफारिश कर दे कि मैं तेरा रब हमारा फैसला कर दे, बस हमें मौत आ जाए, खात्मा हो जाए हमारा। अल्लाह अकबर, ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है कि हर तरफ आग ही आग है, कपड़े भी आग के, बिछौना भी आग का, लिहाफ भी आग का, दाएं भी आग, बाएं भी आग, ऊपर भी आग, नीचे भी आग, आग ही आग। और हर तरफ से जहन्नम के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए गए, बड़े बड़े सतूनों के साथ इनको जकड़ दिया गया। कहेगा अल्लाह एक मौका दे दे, अगर मौका नहीं ना देना तो कम से कम मुझे मौत ही आ जाए। लेकिन आगे से क्या जवाब मिलेगा, इसमें तुम जलील होके पड़े रहोगे, ना तुम्हारा कोई और फैसला होगा, ना यहाँ से तुम्हें निकाला जाएगा, ना तुम्हें मौत आएगी। ये कौन है? जिसने अपनी दुनिया की फिक्र की और जो अपनी आखरत की फ़िक्र करने वाला है। 2-3 आयात उसके मुतालिक भी समात फरमा लें। फरमाया मन अरादल आखिरत व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। जिसने अपनी आखरत की फ़िक्र की उसके लिए मेहनत दरकार है। आखरत के लिए मेहनत की। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, इसकी मेहनत की वहाँ कदर की जाएगी। जो दुनिया के अंदर ये आमाल करता रहा, इसने मेहनत की दुनिया में अपनी आखरत की, तो इसकी मेहनत की कदर की जाएगी। अल्लाह कैसे कदर होगी? फरमाया जब फरिश्ते इसकी रूह को लेने के लिए आएंगे, अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाएंगे, सलामुन अलैकुम, ओ अल्लाह के बंदे आजा, वापस आजा, सलाम है तेरे लिए, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। इसको अल्लाह के फरिश्ते बड़े ही आराम के साथ इसकी रूह को कब्ज़ करेंगे। सलाम सलाम की आवाज़ें होंगी। फिर आगे कब्र में रहना इसका बड़ा उम्दा होगा। माशर के मैदान में जाएगा तो बड़े ठाठ बाट के साथ जाएगा। अब वहाँ हिसाब होगा, वहाँ अल्लाह के सामने खड़ा होगा। जब अल्लाह के सामने खड़ा होगा ना, अल्लाह भी अपने इस बंदे को देख देख के मुस्कुरा रहा होगा। अब इसकी किताब इसको पकड़ाई जाएगी, किताब पकड़ाई जाएगी। और किताब किस हाथ में? दाएं हाथ में। फरमाया अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हा मुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ऐशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह फरमाते जिसको उसका नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़ा दिया गया, वो इतना खुश होगा कि खुशी अल्लाह अकबर उसके चेहरे से नुमाया होगी। तरोताज़ा हशाश बशाश चेहरा होगा इसका। और अपने आइज़ा क़ारिब को, अपने रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, दोस्त अहबाब को आवाज़ें देगा, आवाज़ें इधर आओ, ये देखो मैं कामयाब हो गया। जैसे किसी बच्चे का रिज़ल्ट आए ना अच्छा, मैट्रिक में या किसी भी, अल्लाह अकबर, तो अपने अच्छा रिज़ल्ट आने पे बच्चा बड़ा खुश होता है और अपने वालिदैन को, आइज़ा क़ारिब को, दोस्त अहबाब को ये देखो मैं कामयाब हो गया।
میرے اتنے نمبر آ گئے، میں اس پوزیشن پہ آیا۔ اللہ کہتے اس دن بھی ایسا ہی ہوگا، ہاؤ مقراؤ کتابیہ، کہے گا میں نے دنیا میں اللہ کے لیے محنتیں کی تھی، آج نتیجہ بڑا اچھا نکلا ہے۔ ایک طرف یہ کھڑا اللہ اکبر خوشی منا رہا ہوگا، اور دوسری طرف سے اللہ کہیں گے اس بندے میرے کو لے جاؤ جنت کی طرف پروٹوکول کے ساتھ۔ اور کیسے لے کے جائیں گے فرشتے؟ فرمایا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اللہ فرماتے جب جنتیوں کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، جنتیوں کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، پہلا گروہ جو جنت کی طرف جائے گا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرا گروہ جو جائے گا ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرمایا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جب یہ گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے، جنت کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، جنت کے دربان، جنت کے چوکیدار، جنت کے پہرے دار، وہ سارے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جناب آپ کو سلام ہو، خوش ہو جاؤ اور خوشی خوشی رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جنت میں داخل ہو جاؤ، سب سلام ہو۔ جیسے یہ اللہ اکبر سوسائٹیاں بن جاتی ہیں نا، کالونیاں، اور ہر گیٹ پہ ایک پہرے دار کھڑا ہوتا ہے، ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، وہ آنے جانے والے کو، اور خاص کر جو اس سوسائٹی کا رہنے والا اس کو سلام، جناب سلام ہو آپ کو۔ اسی طرح اللہ کہتے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جناب آپ کو سلام ہو، کامیاب ہو گئے آپ، جنت کے وارث بن گئے آپ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، ان کو کہا جائے گا یہ جنت کے تم آج وارث بنے ہو اسی وجہ سے جو تم دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، دنیا میں جو تم نے محنت کی نا۔ اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون لیوم الحساب ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد۔ اللہ کہتے بہت عمدہ ٹھکانہ ہوگا، بہت ٹھاٹ باٹ ہوگا، بہت شاہانہ زندگی ہوگی، حشاش بشاش ہوں گے۔ اللہ اکبر، موسم بھی ان کے مطابق، کھانے بھی ان کے مطابق، مشروبات بھی ان کے مطابق، پرندوں کا گوشت ان کے لیے، اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت، اے میرے جنتی بندے، دنیا میں اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، جب تو آئے گا نا میری جنت میں، اذا رأیت ثم رأیت، جس طرف بھی دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ملکن کبیرہ، بڑی بڑی جاگیریں ہوں گی، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ریشم کا لباس ہوگا، بڑی شاہانہ زندگی ہوگی، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود شراب طہور عطا فرمائے گا۔ فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا کے اندر محنت کر کے آئے ہو۔ یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، سارا ٹھاٹ باٹ نعمتیں دنیا جنت کی ملیں گی۔ پھر اللہ آواز لگائے گا او جنت والو، حل رضیتم، کیا تم راضی ہو؟
अल्लाह अकबर। मेहमान नवाज अल्लाह होगा, अल्लाह ये सारे मेज़बान होंगे, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, फिर अल्लाह आवाज़ लगाएगा। क्या मंजर होगा, इसका तो तसव्वुर दुनिया में किया ही नहीं जा सकता। उस वक़्त क्या मंजर होगा जब जन्नत वालों को आवाज़ लगाएगा अल्लाह, हर रज़ी तुम, ओ मेरे बंदो तुम राज़ी हो, क्या तुम खुश हो? जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह हम राज़ी क्यों ना हो, हम खुश क्यों ना हो। अल्लाह अकबर, तूने हमें जहन्नम की आग से बचाया, जन्नत का दाखिला अता किया। अल्लाह कहेंगे एक नेमत तुम्हें और अता करना चाहता हूँ, एक नेमत और अता करना चाहता हूँ। फिर अल्लाह अपने सामने से नूर के सारे पर्दे हटा के जन्नतियों को अपना दीदार करवाएगा। उसको ये कामयाबी मिलेगी जो दुनिया में अपनी आखिरत के लिए मेहनत करता है, अपनी आखिरत के लिए फ़िक्र करता है। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि आप दुनिया से बिल्कुल कट जाएं और दुनिया के लिए कुछ तगो दो ना करें ना। अगर अल्लाह ने माल दिया है, इस माल को गुनाह के कामों की बजाय अपनी आखिरत संवारने के कामों में लगाएं, जैसे उस्मान गनी लगाया करते थे, जैसे अल्लाह अकबर अब्दुर्रहमान बिन औफ लगाया करते थे, जैसे अल्लाह के नेक बंदे अपने माल को, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या कहने उनके, एक वक्त ऐसा आया कि उनका कारोबार इतना फैला हुआ, इतना फैला हुआ और इस कदर गुलाम कि हज़रत उस्मान को पता ही नहीं था कि मेरा कारोबार कहाँ तक फैला हुआ है, और इसकी निगरानी करने वाले मुलाजम नहीं, ज़र ख़रीद गुलाम है, किस कदर हैं, हज़रत उस्मान को पता ही नहीं था। वजह क्या थी? उस्मान ने अपने रब के साथ सौदा किया, और अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अपने रब के साथ सौदा कर ले, अल्लाह बेवफाई करने वाला नहीं है, अल्लाह तो अपने वादे का बड़ा पाबंद है। आजकल ये इलेक्शन का मौसम आ गया ना, लोग आ रहे हैं आपके पास वोटों का तकाजा करने के लिए, और क्या क्या वादे करते हैं आप जानते हैं, और उसके बाद इलेक्शन के बाद कौन कौन सा वादा पूरा होगा वो भी आप जानते हैं। ये सब इनके वादे हैं, एक वादा मेरे रब का है, और अल्लाह कहते वाद अल्लाह ला युखलिफुल्लाहुल मीआद, अल्लाह अपने वादे की कोई कभी खिलाफ वर्जी नहीं करता। अपने रब के लिए आखिरत की फ़िक्र करें, मेहनत करें आखिरत संवारने के लिए। कैसी मेहनत थी। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, गरीब गुरबा सहाबा जिनके पास माल नहीं था, आखिर में ये हदीस सुन के, सही बुखारी की रिवायत है, बस अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, आए रसूलुल्लाह के पास, आके कहते अल्लाह के नबी जी वो मालदार हमसे आगे निकल गए, वो मालदार हमसे सबकत ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे? कहने लगे देखें अल्लाह के नबी, जैसे हम नमाज़ें पढ़ते हैं वैसे वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम रोज़े रखते हैं वैसे वो भी रोज़े रखते हैं, जैसे अल्लाह अकबर हम नेक अमाल करते हैं वैसे वो भी नेक अमाल करते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ने माल दिया है, माल दिया है। देखें गुर्बत के बावजूद सोच कौन सी है, गुर्बत के बावजूद, तंगी फाके के बावजूद सोच क्या है सहाबाए किराम की। हम तो अगर थोड़ा सा मसला बन जाए ना, लो सारी मुसीबतां मेरे वास्ते ही है, सारी परेशानियां मेरे वास्ते ही नहीं, बस मैं ही रह गया, फुला आगे ना निकल ना। मेरे मोहतरम भाइयों देखो सोच सहाबाए किराम की। अल्लाह अकबर। कहते हैं अल्लाह के नबी वो माल के ज़रिए हमसे जन्नत ज़्यादा ले गए, जन्नत के दराजात हमसे ज़्यादा ले गए। उनको अल्लाह ने माल दिया है, हमारे पास माल नहीं है, हम मालदार नहीं हैं, अल्लाह ने उनको माल दिया है, वो माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, और हमारे पास माल नहीं है, इसलिए वो हमसे आगे बढ़ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिस अमल के करने की वजह से अल्लाह तुम्हें भी उनके बराबर जन्नत अता फरमा, दराजात में तुम भी उनके बराबर हो जाओ। जी या रसूल अल्लाह, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आपने फरमाया मेरे सहाबा फिर तुम हर नमाज के बाद ना 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा करो, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर कहा करो। अल्लाह अकबर ये वजीफ़ा तुम करना शुरू कर दो। जितना माल खर्च करने पर अल्लाह उनको अजर व सवाब अता करता है, उतना अल्लाह इस वजीफ़े के करने की वजह से तुम्हें भी अजर व सवाब अता फरमाएगा।
वो खुशी खुशी वापस पलटे। लो अगर हमारे पास माल नहीं है तो क्या हुआ, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा वजीफ़ा बताया है, हम तो हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा करेंगे। बैठे करना शुरू कर दिया। मालदार भी तो आखिर नबी के सहाबा थे ना, अल्लाह अकबर, वो भी तगोदो में रहते थे कि हमें भी कोई अमल मिल जाए, हम जन्नत के आला दराजात हासिल कर लें। उन मालदारों ने कान लगाया कि ये हर नमाज के बाद बैठते हैं, हम उठ के चले जाते हैं, ये बैठे होते हैं, आखिर ये करते क्या हैं, कौन सा अमल है जो ये करते हैं। उनके कान में भी पड़ गया ये अमल कि ये तो हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहते हैं, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते हैं। उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। अब ये गरीब गुरबा फिर आ गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फिर चेहरा उड़ा हुआ परेशान। आपने फरमाया अब क्या हुआ? कहने लगे अल्लाह के नबी जी, वो जो वजीफ़ा आपने हमें बताया था ना, उन मालदारों ने भी करना शुरू कर दिया। यानी इनके आने का मकसद ये था कि आप उनको रोकें कि वो ये अमल ना करें, ये तो गरीब गुरबा का वजीफ़ा है। आपने क्या फरमाया, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसे चाहता है अपना फ़ज़ल अता कर दे। जिसको अल्लाह चाहे अपनी आखरत के संवारने के लिए सोच उसके जहन में पैदा कर दे, फ़िक्र उसकी पैदा कर दे। सहाबाए किराम ये आखरत अपनी संवारने के लिए तगोदो करने वाले, मेहनत करने वाले, काश ये सोच हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। जंगे बदर के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद जंगे ओहद है या जंगे बदर है, आपने फरमाया अभी तुम जंगे बदर थी, आपने फरमाया पीछे ही रहना है, जब मैं कहूँ तो उस वक़्त तुमने आगे बढ़ के दुश्मन का मुकाबला करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कुमू इलल जन्नह अर्ज़ु हस्समावातु वल अर्ज़, उठो आगे बढ़ो उस जन्नत को हासिल करने के लिए जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। एक सहाबी कहने लगा अल्लाह के नबी वाकई क्या जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है? आपने फरमाया हाँ, जन्नत की चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है। अपने थैले में से खजूरें निकाल के खा रहा था, वो खजूरें वहीं पे फेंक दी कि अगर ये खजूरें खाता रहा जन्नत में जाने से ताख़ीर हो जाएगी। वही थैला फेंका और आगे बढ़ा, शहादत नौश करके रब की जन्नत का वारिस बन गया। ये सोच पैदा करें, अल्लाह हमें आखरत की फ़िक्र करने वाला बनाए और टारगेट बनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हमने अपने रब की जन्नत को हासिल करना है। अल्लाह सबको जहन्नम की आग से महफूज फरमा ले। आमीन सुन्ना आमीन।